Miss Fauziya. So I am your interlocutor. Uh, You have given 3 minutes. Now you can start the role play, and don't worry if I stop you after 5 minutes. Your time starts now. okay. First, thank you, sir. Hello, good morning. I am a community nurse. My name is Fozia Gulnas. How are you doing today? I'm doing well, nurse. Okay. And may I help you? Yes, nurse. I need help because I am experiencing, episodes of shortness of breath, and that my heartbeat are really getting fast. And the third thing is that there's sharp pain in my chest. I don't know what to do. I'm sorry to hear that, Mr. Kader. A panic attack can be a very distressing. Can you tell me about your panic attack? What symptoms are you experience? Yes, nurse, I have told you that, during panic attack, it's really difficult for me to control my heart rate, and it mostly lasts for 20 minutes. Okay, I understand. First of all, tell me, explain. You notice any particular triggers or situations on your panic attack? Yeah, nurse, I have experienced that whenever my exams are near and I prepare for exam, at that time, my panic attack gets aggravated. Okay, Mr. Kader, don't worry. I understand your feelings. Um, um, First of all, um, it's understandable to feel sorry feel anxious with such importance exam coming up. What experiencing while distressing the normal response to feel very nervous, anxious, and fearful about your exam. Many students go through similarly feeling Mm-hmm. during exam Okay, and then relax. okay. Yes, nurse, I can understand what you told me, but the thing is that I'm considering myself that these panic attacks are getting day by day more serious, and might be I'm getting some serious condition. So this thing make me more worried. This time really is tough. There was something seriously wrong with me. It's very common. You are not alone in this. Many students experience panic attacks uh, during exam, nearby exam time due to the pressure and the stress the exam. And The good news for you is that there are way to manage and reduce these attack. That's relief to hear. Yes, You nurse. understand in my Yeah, points. yes, nurse, it's quite understandable, but the thing is that I don't know how to manage these. I have not ever heard about any strategies. So could you please tell me more about that? Uh, look, Mr. Kader, please. First of all, what can I do? Stop them. There are several strategies you can try. First, when you feel a panic attack coming, to try to Mm-hmm. go a quiet space Mm-hmm. where you can sit Okay. comfortably, close your eyes, and Mm-hmm. take slow deep breaths. Okay, Okay. you getting my point? Yes, I Okay, understand. and then okay, um, are you sure both are a same page? Yeah, nurse, I got the thing. I actually am asking about strategy, and you're telling about the strategy. So I'm getting your point. Okay.
Okay, and secondly, can also help. I will try then. Anything else? Practicing healthy habits is a very important. Make sure you are getting uh, enough rest, eating well, and Mm-hmm. staying Mm-hmm. hydrate regular physical activities, even some things as simple as a daily walk, can help reduce stress level. Okay. Also, try to maintain a consist sleep. Should as lack of sleep schedules as a lack of sleeps can increase anxiety. Okay. So your You time know, is a up. good sleep is a Okay. okay. Your Thank you. time is Thank. done. सो बाकी स्टूडेंट्स भी ऐड हो गए हैं, सो हम इसको इधर से आगे से लेके चलेंगे अपनी आज की क्लास को। सो स्टूडेंट्स आए नहीं थे तो मैंने फिर इनके साथ रूल प्ले स्टार्ट कर लिया। तो इसी तरह हम लोग ना इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि जब हमारा स्पीकिंग डे होगा तो जो रोल प्ले वीकली डिसाइड हुआ होगा, जो 2 से 3 रोल प्ले आप लोगों को सेट किए जाएंगे कि आपने क्लास एक्टिविटी करनी है एक दूसरे के साथ, आप लोग कर रहे होंगे। तो जब लाइव क्लास हमारी होगी तो हम उसके अंदर एक रोल प्ले ऐसे करेंगे, और सब स्टूडेंट्स को सुन रहे होंगे, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सुन रहे हो कि कैसे नर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, और फिर सबकी राय ली जाएगी कि कौन सी चीज़ें थी जो उसने गलत की हैं, जो कौन सी चीज़ें थी जो उसको करनी चाहिए थी। इससे हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड्स की थॉट्स है वो हमारी मिलेंगी, ठीक है। तो आज जो चीज़ है मेन को जिसपे ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो है व्हाट डज पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच मीन। जो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए ना कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ मैंने चलना है, तो आपका रोल प्ले को लेके चलना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि द पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन डिजीज। आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है, या बोथ द पेशेंट एंड डॉक्टर हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिम्टम, ठीक है। जो पेशेंट है और डॉक्टर है उन दोनों को अंडरस्टैंडिंग है सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स कैसे होते हैं, ठीक है। पेशेंट एंड डॉक्टर स्पीक मोर और लेस इक्वली। जो एक रोल प्ले चल रहा होता है उसके अंदर डॉक्टर और जो पेशेंट है उन दोनों ने कम ज्यादा बराबर बोलना है। जितना अगर नर्स बोल रहा है तो उतना ही पेशेंट भी साथ अगर बोल रहा है, तो इक्वली लेके चलना चाहिए आपने लिसनिंग और स्पीकिंग को, ठीक है। तो डॉक्टर्स कंट्रोल एंड गाइडेंस कंसल्टेशन, चौथा पॉइंट है डॉक्टर्स कंट्रोल एंड गाइडेंस कंसल्टेशन। इसमें से एक पॉइंट गलत है, कोई मुझे बताना चाहेगा मैसेज के अंदर कि कौन सा पॉइंट गलत है। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने रोल प्ले पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरह लेके चलना होता है, और इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि गलत है, तो हम देखेंगे। आप लोग अगर बता दें कि वो कौन सा पॉइंट गलत है मैसेज में, अदरवाइज फिर मैं इसको बताता हूँ। सर फर्स्ट वाला। अच्छा जी, आपने क्या फर्स्ट वाला, एनीवन एल्स। मैंने बताया कि जो गलत है, कुछ बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को शो करते हैं, और एक पॉइंट है जो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को शो नहीं करता। एनीवन एल्स। Sir, C. सी, एक ने कहा जी पेशेंट एंड डॉक्टर स्पीक मोर और लेस इक्वली, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये शो करता है कि ये पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। सबसे पहले पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को हम समझ लें कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच वो होती है जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो मेन फोकस वाली बात होती है, वो पेशेंट से रिलेटेड जो पेशेंट की नीड है उसको अप्रोच करना जो होता है उसे कहते हैं पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम देखते हैं इसको आगे जाके। जो फर्स्ट अप है वो पेशेंट सेंटर्ड है, क्योंकि देखिए एक पेशेंट है जिसको डायरिया है, एक पेशेंट है जिसको फीवर है, कोई भी सिम्टम लगा ले, कोई पेन लगा ले, तो जो पेशेंट फील कर रहा है वो अपनी पेन का वो एक्सपर्ट है। आपने तो जनरली पेन को सीखा होगा ना, पेन के सिम्टम्स को या चीजों को, लेकिन वो किस किस्म की पेन फील कर रहा है वो उसको पता है। वो क्या वही बता सकता है कि मुझे किस तरह की पेन हो रही, कहाँ ज्यादा होती, कहाँ कम होती है, कब बढ़ती कब ज्यादा होती है। ये बुक्स के अंदर नहीं लिखा होता कि कौन कौन सी चीजें, ठीक है। हर पेशेंट की डिफरेंट होती है, तो इसलिए जो पेशेंट सेंटर जब पेशेंट, इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट कोई भी चीज आपकी बता अपने बारे में बता रहा है तो आपने उसको वैल्यू देनी है, उसको ओके का साइन देना है कि हाँ ओके, सो यू टेलिंग अबाउट दिस। जैसे इसमें कुछ हमारा एक रोल पे लास्ट गुजरा था, आपने देखा होगा, तो सिस्टर ने कोशिश की थी एक दो जगह कि उसने मुझे कहने की कि ओके यू आर फेसिंग दिस, ओके इट्स क्वाइट नेचुरल। तो ये एक है कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ चल रहे हो, आप पेशेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो जो आप कह रहे हो मैं समझ सकती हूँ ये चीजें होती हैं,
ये कंसिडरेबल है, ये रिलायबल है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन, बोथ द पेशेंट एंड डॉक्टर हैवंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिम्टम, ठीक है। पेशेंट को अपने सिम्टम की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है, डॉक्टर को क्योंकि डॉक्टर ने सिम्टम्स की हर चीज को पढ़ा हुआ है, कि इस तरह के सिम्टम्स हो तो वो किस तरह की बात जा रही है, इस तरह के सिम्टम्स हो तो उसने पेशेंट को साथ लेके चलना है। तो ही वो जो है ना, उन दोनों की जो है ना वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होगी, जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, पेशेंट एंड डॉक्टर स्पीक मोर और लेस इक्वली। ये क्या था कि अगर पेशेंट बोल रहा है तो नर्स ने भी उतना ही बोलना है, अगर नर्स इतना बोल रहा है तो उतना ही आपने पेशेंट से भी वैसे सवाल करने कि पेशेंट अपने बारे में बताए। ज्यादातर पेशेंट से क्लोज क्वेश्चन नहीं करने की, पेशेंट भाई यस नो पे जवाब देता रहे और आप लंबी लंबी तकरीरें करते रहे। ये भी अच्छी रोल प्ले की अलामत है। अच्छे रोल प्ले की अलामत क्या है कि आपके जो क्वेश्चन हो वो पेशेंट को एक्सप्रेस करने में हेल्प करें, पेशेंट अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अपनी फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस कर सके। अब लास्ट में जो पॉइंट गलत था वो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, वो था डॉक्टर्स कंट्रोल एंड गाइड द कंसल्टेशन। कि डॉक्टर ने कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपने ये बोलना है, आपने नहीं बोलना, अगर आप कुछ चीज गलत बोल रहे हो स्टॉप, ठीक है। और गाइड करोगे जीवन, कंट्रोल और गाइड के पॉइंट से डॉक्टर ने कंट्रोल, डॉक्टर ने सुनना है, जो वो बात कर रहा है उसको बोलने देना है, उसको अलाउ करना है कि वो बोले, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट कोई बात किसी भी चीज के बारे में बता रहा हो तो आप उसको अप्रिशिएट करना है कि ओके थैंक्स फॉर लेटिंग मी नोइंग अबाउट योर कंडीशन, ठीक है। तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है कि मुझे आपको अच्छा लगा, आपने जो अपनी चीज बताई अपने बारे में बताई। तो आप लोगों ने ये चीज सीखनी है कि आपका जब रोल प्ले हो वो पेशेंट सेंटर्ड हो। नेक्स्ट चीज, हमने जिस चीज पे काम करना है, आपने जब भी रोल प्ले सुनना है, आपको जो एक्टिविटी क्लास में भेजी जाएगी उसके अंदर जो रोल प्ले होंगे, जैसे मैंने कुछ प्रीवियस रोल प्लेस भेजे थे जो ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया हुआ था, आपने उनको सुनना था। आपने जब भी रोल प्ले क्लास में सुनना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी के साथ रोल प्ले कर रहा हूँ, या आप रोल प्ले जो क्लास एक्टिविटी के अंदर आपको सेंड किया गया आप उसको सुन रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी चीजें नोट करनी है, ये आपने लिख लेनी है, ठीक है। आपने देखना है कि उन्होंने इंटरेक्शन कैसे बिगिन किया, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर रहा था, कौन सी टर्म यूज कर रहा था जिससे पता चल रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मेकिंग सुजेशन, अगर वो सुजेशन दे रहा है तो सुजेशन देने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कौन सी। ये जब हमारा रोल प्ले भी जिस तरह अभी सिस्टर रोल प्ले कर रही थी क्लास में, आप जब इसी तरह हर सेशन में रोल प्ले हो रहा होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये चीजें नोट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करें, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितनी अच्छी थी और अगर ये इसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सप्लोर द पेशेंट कंसर्न, ठीक है। अगर आप पेशेंट के कंसर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, आप एम्पैथी कैसे डिमोन्स्ट्रेट करते हो, ठीक है। कल एक सिस्टर ने जो क्वेश्चन किया था सिंपैथी और एम्पैथी का, तो मैं उनको ये बता दूं कि ओईटी रोल प्ले के अंदर आपने सिंपैथी नहीं, आपने एम्पैथी शो करनी है, एम्पैथी वर्ड यूज करने हैं, ताकि आपका रोल प्ले क्वालिटेटिव हो, ठीक है। इनकरेज द पेशेंट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। और पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो, आपने ये चीज नोट करनी है कि अगर जो नर्स है वो पेशेंट को इनकरेज कर रहा है रिस्पॉन्ड के लिए, तो कैसे लैंग्वेज बोल रहा है, ओके कैरी ऑन इट्स गुड, आई अंडरस्टैंड, जो इस तरह के जो वर्ड है वो इनकरेज करते हैं कि हाँ और बताओ मुझे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो देखना है कि जो नर्स है वो जब रोल प्ले कर रहा है वो पेशेंट को इनकरेज करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है, और लास्ट में रोल प्ले एंड कैसे करता है, ठीक है। तो ये 2 4 6 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंट्स को आपने फोकस कब करना है, जब एक रोल प्ले क्लास एक्टिविटी में आपको भेजा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अब ये रोल प्ले आपने अपने बाकी कोलीग्स के साथ करना है। आपने पहले रोल प्ले सुनना है और उसके अंदर वो लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लेनी है अपने पास, ठीक है। बेहतर कुछ आप लिख लें ताकि आपको फ्रेजेस मिल जाए कि ओईटी के अंदर आप किस तरह की लैंग्वेज को जो है स्टार्ट करते हुए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उसके दौरान कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेटिंग होती है ना, सेटिंग के अंदर ये जो सारी चीज लिखी होती है कि योर पेशेंट इज 71 ईयर ओल्ड हु हैज हैड अ ब्लड क्लॉट ऑन हिज लेग ड्यू टू डीप डीबीटी, ठीक है। यू आर विजिटिंग यू आर विजिटिंग द होम टू चेक ऑन द स्वेलिंग एंड आल्सो टू चेक दैट द पेशेंट इज डूइंग द एक्सरसाइज रिकमेंडेशन बाय डॉक्टर। तो ये आपका आपकी सिचुएशन है, यू आर विजिटिंग द होम, मतलब आप होम के अंदर नहीं हो, यू आर विजिटिंग द होम, आप विजिट कर रहे हो भी, ठीक है। द मेडिकल रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट स्मोक्स, अब देख जो रिपोर्ट वो जो आपको मिली है, ठीक है। द पेशेंट हैज रिसेंटली बीन विडोड एंड द डॉक्टर हैज सम कंसर्न अबाउट हिज मेंटल वेलबींग, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट डॉक्टर ने दिया हुआ है, आपने रोल प्ले के अंदर इसको एडजस्ट करना है किसी तरीके से, जो मेंटल वेल बींग है उसको अंडरस्टैंड करके। यू आर कंसर्न दैट द पेशेंट माइट डेवलप अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और आपका कंसर्न ये है कि पेशेंट ने शायद
पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप कर लिया हुआ है। तो अब ये जो येलो में इंफॉर्मेशन हाईलाइट की गई है खासकर सेटिंग के अंदर, ये आपको हेल्प आउट करती है कि आपने रोल प्ले स्टार्ट कैसे करना है। आप अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो कि पेशेंट आपको जानता है, आपने पेशेंट की असेसमेंट कर ली है, आपने पेशेंट को इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है कि नहीं दे दिया। यहाँ से आपका जो इंट्रोडक्शन स्टाइल होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर टास्क के अंदर जैसे फाइंड आउट, रीच और ये वर्ब्स होते हैं, ये इसके लिए आपने डिसाइड करना है कि आपने अगर फाइंड आउट करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, रीअश्योर करना है कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, सुजेस्ट करना है कौन सी यूज करनी है, और सिंपैथेटिक होना है एम्पैथेटिक होना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, और सुजेस्ट करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी पहले लैंग्वेज सेंड की भी हुई है, तो आप उसको रिवाइज करें, उसको सुनिए। और जब आप रोल प्ले सुनते हैं तो आप एक रोल प्ले के अंदर देखिए टास्क कौन कौन से लिखे हुए हैं, ठीक है, वर्ब कौन कौन से लिखे हुए हैं, और उसी रोल प्ले को जब कोई कर रहा है नर्स तो वो कौन कौन से लैंग्वेज यूज कर रहा है फाइंड आउट के लिए, सुजेस्ट के लिए, ये आपकी लर्निंग है। उसको फिर आप याद करें। और दूसरे तीन मैंने आप देखें आज ना तीन तीन कोलीग्स को ना से अल्टरनेटिव नंबर सेंड कर दिए। आप किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, साथ के नंबर है या आप एजुकेशन पर्पज के लिए ट्रेस कर रहे हैं तो आप उनको ट्रेस करें, किसी को भी जो अवेलेबल है ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें बेशक कि आई एम फ्री, आई वांट टू डू रोल प्ले, एनीबडी अवेलेबल। तो जो अवेलेबल होगा वो कांटेक्ट करके वो रोल प्ले कर सकता है। मेरा कहने का मकसद ये है, मेन टास्क क्या है, देखिए ये नहीं है कि आपको दो बंदों का नंबर मिला है और वो आपसे रब्ता नहीं करे तो जी मैंने रोल प्ले इसलिए नहीं किया मुझसे दो बंदे रब्ता नहीं करें। आपने अपनी प्रैक्टिस को अगर आप जितना ज्यादा इसको करेंगे उतने ही ज्यादा, आपने आज देखा होगा कन्वर्सेशन सिस्टर कर रही थी तो बहुत सारी जगह पे वो रिलक्टेंट थी बात करते हुए, स्लो थी, का यूज हो रहा था ज्यादा। तो ये चीज कैसे दूर होनी है बात की। देखिए आप आपको जादू की छड़ी तो किसी ने नहीं देनी कि आज आपको मैंने को टिप्स दी हैं, और या किसी भी अच्छे अच्छे से अच्छे प्रोफेसर के पास भी चले जाए उसने आपको टिप्स दी हैं तो दूसरे तीसरे दिन आप फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे, नहीं। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से ठीक होनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी का एक ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप के अंदर 6-7 लोग हैं जिनका टास्क ठीक है, इसलिए इससे फायदा उठाएं और सब लोग सिंसियर होकर एक दूसरे के साथ मिलकर इस चीज पे काम करें, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट द रोल पे, ठीक है। आप नॉर्मली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हेलो माय नेम इज ग्रेस एंड आई विल बी लुकिंग आफ्टर यू टुडे, क्या आई कॉल यू जॉन। अगर तो देखिए आपने रोल प्ले आप ऑलरेडी उसका नाम जान चुके हुए हैं या आपने उसका नाम पूछा है, आपने देखा क्योंकि आपके पास नोट तो है ना, आप कह सकते हैं कैन आई कॉल यू जॉन। अगर वो जो स्पीकर है वो एग्री करता है कि यस यू कैन कॉल मी जॉन, ओह प्लीज कॉल मी कैबल कैल्वन, ठीक है। तो अगर वो कैल्वन बोलता है तो देन यू हैव टू कैल्वन। इट्स मीन कि आप ये सिंपल वे में इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो सेटिंग है आपने सेटिंग के अंदर देखा कि आपको उसके केस नोट्स मिल चुके हुए हैं। इट्स मीन कि आपका नाम केस नोट के ऊपर लिखा होगा, आपको उसका नाम पता है। अब आपने बस कंफर्म करना है कि ये बंदा वही है या मैं इसको यही नाम से पुकार लूं, ठीक है। तो आप सिंपल बोले हेलो माय नेम इज कादिर एंड आई एम लुकिंग आफ्टर यू टुडे, हॉस्पिटल के अंदर है, कैन आई कॉल यू जॉन, ठीक है। अगर आप उस कम्युनिटी नर्स है तो आप कह सकते हैं हेलो माय नेम इज गेस एंड आई एम अ कम्युनिटी नर्स, तो कैन आई कॉल यू जॉन, कैन आई कॉल यू जॉन, ठीक। तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं हेलो कैथी, इट्स गुड टू सी यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हैविंग हेडेक, इज दैट राइट। देखिए अब आपने स्टार्ट में उसका नाम ले लिया, आपने कहा हेलो कैथी, इट्स गुड टू सी यू, मतलब मुझे अच्छा लगा मैं आज आपको देखने आया, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हैविंग हेडेक, क्योंकि ये सेटिंग में आपने चीजें पढ़ ली है। सेटिंग के अंदर आपने देख लिया कि उसको हेडिंग का प्रॉब्लम है और आप उसको देखने आए, ठीक है। तो आप कंफर्म कर रहे हो कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है वो करेक्ट है कि इट्स गुड टू सी यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हेडिंग, इज दैट राइट। ये देखिए अब ये पता क्या है, ये और मुश्किल से मुश्किल तरीन भी आप इस रोल प्ले को स्टार्टर को बना सकते हैं। जितना ज्यादा जाहिर बात है जो अच्छी लैंग्वेज और कंप्यूटर यूज करता है उतने उसके ग्रेड्स ऊपर आ जाते हैं, वो A+ की तरफ जाना शुरू कर देता है। हमारा टारगेट B है लेकिन आपने फिर भी कोशिश करना है कि थोड़ा सा यूनिकनेस अपनी लैंग्वेज के अंदर रखना है, आपने कोई ऐसे याद करने हैं। अच्छा ये डिस्टर्बेंस आ रही है कोई, ये बताइए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखिए दो किस्म के मैंने आपको रोल प्ले इधर स्टार्ट बताया कि आप अगर पेशेंट का नाम सेटिंग के मुताबिक आपको लगा कि आपने पेशेंट के बारे में सेटिंग में पढ़ा वैसा कुछ आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन दोनों तरीकों से रोल प्ले स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जिससे आप फ्लुएंट हो। इस चीज की प्रैक्टिस आपने कब करनी है,
जब आप अपने कोलीग्स के साथ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपने मेरे साथ रोल प्ले करना है क्लास में, तो तब आपको ग्रेडिंग होनी है, तब आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी कमियों को, और मैंने आपको दो तरीके मैंने बताए हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप व्हाट्सएप पे स्पीकर ऑन कर लें, ठीक है, और स्पीकर ऑन करके आप जो है रिकॉर्डर दूसरा मोबाइल ले लें और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके आप रोल पे स्टार्ट कर दें। नॉर्मली जैसे मैं अक्सर के स्टूडेंट्स का जिनका सेशन लेता हूँ तो उनको रिकॉर्ड करके ऐसे भेजता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका एक ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, अगर आप ऑप्शन पे जाए ना जहाँ पे नेट ब्लूटूथ का और ये सारे ऑप्शन हैं, तो वहाँ पे जो एंड्रॉयड के जो लेटेस्ट मोबाइल है ना, उनके अंदर ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन वॉइस रिकॉर्डिंग। आपके मोबाइल में जो चीज़ें हो रही होंगी वो रिकॉर्ड हो सकती हैं। तो आप वो ऑप्शन देख लें, अगर आपको वो ठीक चलता है तो उस तरह कर लें। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको जो ठीक चलता है आप वो करके तो एटलीस्ट इसकी एक आधी रिकॉर्डिंग करें, ताकि आप अपनी गलतियों को एवेलुएट कर सकें। अच्छा, अगर कहते हैं कि इफ इट इज क्लियर फ्रॉम द रोल कॉल दैट यू ऑलरेडी नो द पेशेंट और द रोल प्ले स्टार्ट मिड वे थ्रू द कंसल्टेशन, यू डू नॉट नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। आपने रोल प्ले पढ़ा, अब उसके अंदर लिखा हुआ है, ये इसके प्लस पॉइंट है ओईटी के अंदर, ठीक है। आपने रोल प्ले पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि यू हैव टेकन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। सेटिंग को इसलिए मैं कह रहा हूँ, सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेटिंग को इतना लाइटली लेना कि बस मेरे को टास्क मैंने फॉलो कर लिए तो बस वही सब कुछ है, नहीं। सेटिंग के अंदर अगर आपने अपनी सिचुएशन को देखी है कि आपने असेसमेंट कर ली हुई है, अब आपने किसी चीज के बारे में एजुकेट करना है, इट्स मीन कि आपको अब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो आप कह सकते हो ओके फ्रैंक, नो दैट आई हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन, आई वुड लाइक टू डिस्कस माय फाइंडिंग, इज दैट ओके विद यू। मुझे एक रोल प्ले आया था जिसके अंदर उसने कहा था कि आप क्लिनिक के अंदर आपके पेशेंट आया है, आपने उसकी असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, आप पेशेंट को आपने एजुकेशन देनी है उसके प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो अब इस तरह का रोल प्ले होगा तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, आप कह सकते हो ओके फ्रैंक, नो दैट आई कंप्लीटेड एग्जामिनेशन, आई वुड लाइक टू डिस्कस माय फाइंडिंग, इज दैट ओके विद यू, ठीक है, कि मैं आप तुम्हारी फाइंडिंग तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ ठीक है। आगे जो उसका रिस्पॉन्ड आएगा फिर आपको कुछ करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आगे करने में, ठीक है। या हेलो माइकल, थैंक यू फॉर कमिंग टू सी मी टुडे, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम विद योर विजन, ठीक है। ये एक और तरीका है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज्यादा फ्लुएंट और कंफर्टेबल फील करते हो, इससे और भी कुछ आप यूनिक बना सकते हो कि हेलो माइकल, सो यू हैव केम टुडे हियर, आई थिंक यू हैव स्ट्रगलिंग विद समथिंग, सो टेल मी स्ट्रगलिंग विद योर विजन, सो प्लीज एम आई क्लियर टू यू, या इज दैट ओके सॉरी इज दैट ओके, आप बोलोगे कि यू आर आई थिंक यू हैव कम केम हियर फॉर प्रॉब्लम ऑफ विजन, इज दैट ओके। तो आप कोई भी जो फ्रेज है जिसके साथ इस तरह की जो लैंग्वेज हो जो पेशेंट को रीअश्योरेंस या उसको वैल्यू दे रही हो, आपने इनडायरेक्टली पेशेंट को वैल्यू ज्यादा देनी है, ठीक है। तो ये एक सेटिंग है जिस तरह की इंट्रोडक्शन होती है, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो रोल प्ले होगी आपने सेटिंग बड़े गौर से पढ़ ली है। इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम मीटिंग द पेशेंट, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड चेक द पेशेंट्स नेम, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी जगह पे आपको ऐसा कुछ सेटिंग मिल गई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास आया और आपने उसकी सेटलमेंट करनी है और आप उसकी ये चीजें करनी है, तो सो यू कैन से दैट हेलो इट्स गुड टू मीट यू, माय नेम इज ग्रेस एंड आई एम वन ऑफ द नर्स ऑन ड्यूटी हियर टुडे, कैन आई कॉल यू सारा। आप उससे ये भी कह सकते हैं कैन आई कॉल यू सारा, या होम आई एड्रेस यू, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कह सकते हो तो होम एड्रेस भी, तो इसका मतलब यही है कि आप जो चाहते हैं मैं बताएं मैं आपको क्या बुलाऊं, ठीक है। और अगर आप कहते हो कैन आई कॉल यू सारा, तो ये भी ठीक है क्योंकि आपके पास इसके नोट्स पड़े हुए हैं, तो आपने उसे देख के इसको बोला है। तो अगर वो कहता है कि नहीं मुझे सारा नहीं कॉल करो, मुझे जैसन कॉल करो, तो फिर आप जैसन बता बोल लीजिएगा। तो नॉर्मली होता है ये कि जो इंटरलोकेटर होते हैं ना जो आपके साथ कोई के अंदर रोल प्ले करेंगे, अगर आप उनको बोल देंगे ना कैन आई कॉल यू सारा, क्योंकि आपने नाम उससे पूछा होगा ना, आपके रोल प्ले से पहले भी आपको नाम पूछा होगा, और 3 मिनट जब आप मिलते हैं तभी आप उसका नाम पूछ सकते हो या किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आप उधर उसका नाम पूछ लेते हो और वही नाम आप इधर यूज कर लेते हो कि माय नेम इज ग्रेस एंड आई एम वन ऑफ द नर्स ऑन ड्यूटी हियर टुडे, कैन आई कॉल यू कादिर, तो इट्स मीन कि वो आपको यस इट्स ओके यू कैन कॉल मी कादिर। तो फिर आप आगे अपना रोल प्ले स्टार्ट कर देंगे। सो टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट दिस कंडीशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक्सप्लेन हु यू आर एंड द नेचर ऑफ द कंसल्टेशन विल बी, ये दो चीजें बहुत होती हैं रोल प्ले के अंदर स्टार्ट करते वक्त। अगर आपने शुरू में सिर्फ अपना नाम बताया उसका नाम पूछा है, उसके बाद अगला काम आपका क्या है कि आपने अपना बताना है कि आप किस तरह की कंसल्टेशन उसके साथ करना चाह रहे हो, या क्या आपका जो मेन गोल है आप दोनों का आपस में बात करने का। आपने उसको क्योंकि आपने रोल प्ले स्टार्ट करना है, आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट है, तो आपका काम है कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लो, उनको बता दो कि सॉरी
उनको बता दो कि हेलो इट्स गुड टू मीट यू, माय नेम इज ग्रेस एंड आई एम वन ऑफ द कम्युनिटी नर्सेज, कैन आई कॉल सारा। तो ये क्या हुआ, आपका इंट्रोडक्शन हो गया और उसका इंट्रोडक्शन हो गया। वो कहती यस, अब उसने अपना नाम बता दिया। अगला काम क्या है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि किस किस्म की कंसल्टेशन हमारी लगी। तो लवली, ओके, थैंक यू भी कह सकते हो, लवली भी कह सकते हो, जो आपको ज्यादा इजी लग रहा हो उससे बोलना। लवली, आई एम हियर टू चेक ऑन हाउ यू हैव बीन डूइंग सिंस यू वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। कि मैं इधर आया चेक करने के लिए, जब से आप डिस्चार्ज हुए उसके बाद आप कैसा, ये अब हमारा नेचुरल कंसल्टेशन है। ये टास्क हमारा ऊपर सेटिंग के अंदर दिया होगा कि आप पेशेंट के पास घर में गए हो, क्योंकि आपने पेशेंट को चेक करना है कि डिस्चार्ज के बाद उसकी कंडीशन कैसी। तो ये चीजें आपके उधर सेटिंग के अंदर लिखी होंगी, तो वहां से आपने पिक करके सिचुएशन को रखना है कि ये हमारी नेचुरल कंसल्टेशन है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल उससे रिक्वेस्ट, आप उसको बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, इज दैट ओके। आप उसको पोलाइट वे में उसकी इजाजत दे रहे हो कि अगर मैं आपसे सवाल जवाब करने लगा हूँ आपके डिस्चार्ज से बाद की जो हालात है, तो आप उसके साथ ओके हो। तो नॉर्मली पेशेंट ओके कहेगा, लेकिन आपका ये एथिकली ये आपके जो वर्ड्स है ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने। ये उधर भी जब आप पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपके जो होगा ना ओस्की टेस्ट होगा, ओस्की में भी वो सारी चीजें देखते हैं कि पेशेंट के पास जा रहा है, इंट्रोडक्शन कैसे करवा रहा है, पेशेंट को रीअश्योरेंस कर रहा है। ठीक है, ये चीजें सिर्फ आपके इधर काम नहीं आनी है। जब आपने ओस्की का एग्जाम देना है ना, अगर आप किसी आयरलैंड चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, चाहे यूके चले जाए, उधर जाके आपको ओस्की देना ही पड़ेगा, किसी भी मुल्क में चले जाए। तो जो ओस्की है उसके अंदर भी सारी चीजें नोट होंगी, इसलिए इन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है कि जो आप लोग रोल पे आप सेटिंग कैसे समझते हो, रोल पे स्टार्ट कैसे करते हो, कंसल्टेशन को कैसे आगे रखते हो। ठीक है, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन की आपने बात करनी कि हाउ हैव यू बीन फीलिंग सिंस यू स्टार्टेड टेकिंग द मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन से रिलेटेड हमारी बात है कि जो डिस्चार्ज के बाद आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप उसके बाद कैसा फील करें। हैव यू एक्सपीरियंस एनी साइड इफेक्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। ठीक है, ये आगे ओपन से फिर आगे क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके नेचर ऑफ टास्क पे डिपेंड करते हैं कि जो आपका रोल प्ले है तो उसमें कौन सा और आपने कैसे लैंग्वेज। हाउ हैव यू बीन, ये एक आपको बताने का तरीका है। ठीक है, टेल मी अबाउट, आप कुछ भी कह सकते हैं, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मेडिकेशन। ठीक है, इस तरह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन वो पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, हार्श लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इंडायरेक्ट लैंग्वेज आप शुरू में यूज किया करें। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे रोल प्ले के अंदर। अगर आप कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ उसने कहा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज एस्थमा इनहेलर। इंट्रोड्यूस करवाया कि एस्थमा इनहेलर, फर्स्ट रिमूव द कैप एंड शेक इनहेलर। इसी तरह जब आप इंसुलिन का एक रोल प्ले कुछ लोगों ने मिस किया है, तो इंसुलिन वाला जब आता है तो आपने बताना है कि फर्स्ट यू हैव टू डू द इंजेक्ट द इंसुलिन, चेक द एक्सपायरी ऑफ द इंसुलिन, देन यू हैव टू, देन कैसे यूज किया, नेक्स्ट कैसे यूज किया, नो कैसे यू मेक श्योर, फाइनली। तो ये जो वर्ड्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी जब कोई भी आप किस चीज को डिस्क्राइब करो जो लेंथी है, तो आप इस तरह के जो है वो यूज करो। आप इस तरह भी कर सकते हो कि next place the mouthpiece between your lips and seal them tightly around it. Is that clear to you? Okay, now press down to the again press down। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। आप दो से तीन चीजों को बता के, जैसे आप फर्स्टली देन नेक्स्ट बता दिया, उसके बाद आप उसकी रीअश्योरेंस लो कि उसको समझ आ गई है, फिर अगर अगली बात शुरू कर दो। ठीक है, उसकी तरह फिर मेक श्योर फाइनली, और लास्ट में जब को बात आती है तो फाइनली बात जिक्र करो। ठीक है, आप दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चरल होना चाहिए कि आप स्टेप बाय चीजें बता रहे हो। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो आपने कैसे करना है कि बिफोर वी कंटिन्यू इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे दी है उसको, अब आपने आगे कोई और चीज उसको बतानी है, तो आप उससे कह सकते हो कि बिफोर वी कंटिन्यू इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो फ्रॉम मी। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टू दिस पॉइंट, इज एवरीथिंग क्लियर सो फार। तो ये सारे फ्रेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की फ्रेजेस हैं, और भी आप फ्रेजेस में सर्च कर सकते हैं। तो आपने सिचुएशन के लिहाज से जो आपको सूट बैठता हो आपने नेचुरल वे में बात करनी। ठीक है, आप ये ना हो तो आपने टाटा टाटा लग। बिफोर कंटिन्यू इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। अब ये क्या लग रहा है, ये स्क्रिप्टेड सा लग रहा है, जैसे मैं इसको देख के किसी से पढ़ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरह ये बस आपने ख्याल करना है कि कोई भी फ्रेज आप यूज करो लेकिन वो नेचुरल लगे, रियलिस्टिक लगे, जो सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, यूज ले पर्सन टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई आपके जो मेडिकल नॉलेज है, तो ऐसा वर्ड आ गया जैसे आपने HbA1c टेस्ट के बारे में बताना है, तो आपने कौन सा लैंग्वेज यूज करनी है उसको बताते हुए, तो आपने बताना है कि दिस इज अ टेस्ट दैट मेजर्स योर एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 months। ठीक है, इट गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ वेल योर डायबिटीज इज बीइंग कंट्रोल। ठीक है,
तो अब ये जब आपने उसका शुगर लेवल बता दिया, पास 3 मंथ बता दिया, तो ये HB1 AC को क्या कर रहा है, ले पर्सन की टर्म के अंदर बताने की कोशिश कर रहा है कि डायबिटीज जो आपकी कितनी अच्छी कंट्रोल्ड है, हमें ये से पता चलता है। ठीक है, अगर आप बोले ना कि इट इज अ टेस्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेडिकल कंडीशन, तो ये उसको नहीं समझ आनी कि मेडिकल कंडीशन इससे मेरी कौन सी हो रही है। आपने मेडिकल कंडीशन जो डायबिटीज है, उसको ब्लड शुगर है, उसको 4 लफ्जों में उसको बताना है कि ये चीजें इसके साथ आपकी कंडीशन जो है वो रिकवर हो रही है। तो ले पर्सन लैंग्वेज आपको समझ आ गई है, आपने जो टर्म्स है मेडिकल टर्म्स ज्यादा हाई लेवल की यूज नहीं करनी। फिर एंड कैसे करना है, एंड का वही है कि आपको लग रहा है कि जैसे अभी आपने खत्म, आपका रोल पे एंड पे आ गया है, लेकिन आपका माइंड बता रहा है कि अभी मेरा इंटरलोकेटर तो मुझे क्लोजिंग वाली बात नहीं कर रहा और शायद 1 मिनट पड़ा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो समराइजिंग द मेन पॉइंट डिस्कशन, फाइंड आउट इफ द पेशेंट, आप कह सकते हो डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, सो जस्ट टू गो ओवर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो लेट मी समराइज अबाउट द मेन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, एक तो आपका रोल प्ले अच्छा एंड हो रहा है। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज बतानी थी कि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना जिसमें एजुकेशन देनी होती है, उसके अंदर बेशक आपके टास्क के अंदर ना भी लिखा हो, आपने लाजमी उसको ब्रोशर देना है कि सो आई एम गिविंग यू अ ब्रोशर विच हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच आई हैव गिवन टू यू, यू कैन रीड फ्रॉम दिस। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं ना, डायबिटीज के बारे में, इंसुलिन के बारे में, कोई भी, मोस्टली एक रोल प्ले लाजमी ऐसा आता था जिसके अंदर आपने एजुकेशन देनी होती है, तो आपने उसके अंदर ये लाजमी यूज करना है कि सो आई एम गिविंग यू दिस ब्रोशर, दिस कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव गिवन टू यू, सो इट विल हेल्प यू टू रिकॉल इफ यू फॉरगॉट एनीथिंग। ठीक है, इस तरह करके आपने इस चीज को ऐड लाजमी करना है। ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कन्वर्सेशन? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, आपने रोल प्ले सुना ना जब सिस्टर ने स्टार्ट किया था आप लोगों के आने से पहले, जब आप बीच मिड में आई थिंक आप आ गए थे, मैं देख रहा था सिस्टर रुबीना और सिस्टर समिया। सर स्टार्ट से नहीं सुना था, लेकिन ये के बीच में सुना था। हाँ जी। अच्छा, अब बताने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, जब एक बंदा बोल रहा होता है तो आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये गलत बोल रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए मैं ये एक्टिविटी रख रहा हूँ। तो देखें, जो मेन चीज है ना, दूसरा मैंने बताना था कि लिसनिंग ए मैंने प्रेजेंटेशन कल शेयर कर दी थी एक, लिसनिंग बी और सी मैं आज कर दूंगा, बी सी आज कर दूंगा और सी कल कर दूंगा। तो ट्यूसडे को आप लोगों ने OET स्टैंडर्ड का पेपर, अगर तो आप लोगों ने पहले किया है तो इट्स ओके, डजेंट मैटर, लेकिन स्टिल जो लिसनिंग का एक पेपर मैं सेंड करूंगा मंगल को। ठीक है, आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। कोशिश करें कि पेपर जो आप अटेम्प्ट करें वो हार्ड कॉपी पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी पे मोबाइल के अंदर ना करें और सिर्फ आंसर लिख के मुझे सेंड ना करें। हार्ड कॉपी के ऊपर आप पेपर अटेम्प्ट करें ताकि आपको गाइड किया जा सके, आपको आइडेंटिफाई किया जाए कि आपको कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं करे पेपर के दौरान, जो आपको एजुकेट करने की जरूरत है। और फिर उसके साथ मैंने जो कुछ एक दो स्टूडेंट, सिस्टर पेंसी शायद आज नहीं है, तो मैं उनको उनको रिकॉल कर दूं कि हमारा स्टडी प्लान ये है कि हमने अब नेक्स्ट मंथ से इस तरह चलना है कि एक हफ्ते के अंदर 4 दिन क्लास होगी। ठीक है, एक दिन स्पीकिंग का होगा, एक दिन रीडिंग का होगा, एक दिन राइटिंग का होगा और एक दिन लिसनिंग का होगा। हम रीडिंग लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे और स्पीकिंग और जो राइटिंग है ना वो लास्ट डेज में आएगा। क्यों? क्योंकि मंडे से मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा राइटिंग टास्क और स्पीकिंग टास्क, वो फिर आपने राइटिंग लेटर लिखने भी है और स्पीकिंग आपस में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और फिर जब लास्ट 2 दिन होंगे, एक दिन के अंदर फिर आप लाइव हम जो है ना वो लेटर को डिस्कस करेंगे, लाइव हम स्पीकिंग रोल प्ले करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि अगले पूरे महीने के लिए 4 वीक के अंदर प्राइजेज होंगे आपके लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट हो और मैंने जो आप लोगों से अर्न किया है मैं आपको थोड़ा सा पे बैक कर सकूं। उसमें ये होगा कि जो लेटर जिसका सबसे अच्छा होगा